Hello guys, welcome back to our YouTube channel Netosphere. The main purpose of this channel is to make the concept revise within 30 minutes, 45 minutes or the minimum time which is possible for any chapter. हम यहाँ कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, हम यहाँ सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल educator which will lead to you understand from zero to advanced level. I will make sure that you will get brushed up here. अगर आपको ये चैप्टर कभी भी पढ़े है किसी भी टीचर से कहीं भी, यहाँ आइए, रिवाइज करिए. यू वॉन्ट गेट डिससेटिस्फाइड. आप इसके बाद क्वेश्चन लगाइए. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी गेट सॉर्टेड आउट. सो लेट स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर of the new unit biology in human welfare. Here we will deal with two chapters, human health and disease and microbes in human welfare. Today we will understand the first half of the human health and disease as it is a very big chapter. So the human health and disease, इसकी नींव हमारे MS स्वामीनाथन सर ने रखी थी. ही इज़ अ बॉटनिस्ट, तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे. और इनके बारे में सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. हमें ये याद रखना है कि इन्होंने ही IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टैब्लिशमेंट किया था. Like nowadays NEET is asking topics which are given in the biography of the scientist, so we will learn this also. स्वामीनाथन सर का ही हेल्प से ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह वगैरह चीज़ें आई. इसको आप देख लीजिए. जो मैं चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है काफ़ी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. So the first chapter is chapter number 7, human health and disease. Here we will understand what is human health and then after what is disease. First of all, we will understand what is a healthy person. A healthy person is not a person which is disease free. According to WHO, World Health Organization, the definition given by WHO is that any person who is socially, emotionally, and physically fit is known as healthy. If the behavioral aspect is also added, then it is termed as reproductive healthy, which is given in the chapter where we will study about the reproductive health. Further, later on we will do that also. I will make sure within 2-3 months that we will concise whole zoology, then after botany, as because zoology is the favorite topic of every NEET aspirant. I have also prepared for NEET earlier, but let's see. Okay, so earlier Greek Hippocrates believed that on the black bile or the good humor hypothesis. They thought कि black bile means garam pit, means the person which are having black bile will be always suffering from the fever. Like here it is written also, black bile belong to a hot personality and would have fever. ये आइडिया को उनकी मीन्स इमेजिनेशन थी. अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स या इंडियन आयुर्वेदा सोचते थे. फिर इसको खारिज कर दिया गया. मीन दैट मीन्स वी हैव रिजेक्टेड दिस. हु हैव रिजेक्टेड बाय मीन्स विलियम हार्वे सर ने. विलियम हार्वे सर वाज अ साइंटिस्ट हु लेटर ऑन डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन. और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ इन्होंने थर्मोमीटर की भी डिस्कवरी किया, जिस थर्मोमीटर के हेल्प से हमें यह पता चला ब्लैक बाइल हो या ना हो, पर्सन फीवर का पेशेंट हो सकता है, मीन्स फीवर उसको हो सकती है. That here it is also written that William Harvey using experimental method and demonstration normal body temperature in the person with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of the health. और कोई भी इंसान बीमार कैसे हो सकता है. डिस इज, पहले तो वर्ड समझना पड़ेगा. डिसीज क्या होता है. डिस मतलब डिस्कम्फर्ट, इज मतलब कंफर्ट. मतलब जो आदमी कंफर्टेबल नहीं है या जो पर्सन कंफर्टेबल नहीं है उसको बोलते हैं डिजीज पर्सन. कोई भी हमारे हेल्थ को तीन चीज़ें इफेक्ट कर सकती है. फर्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकेंड इज इन्फेक्शन, थर्ड इज लाइफ स्टाइल. लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं सम प्रॉब्लम्स लाइक फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस वगैरह वगैरह. तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आती है. फिर होते हैं इन्फेक्शंस. लाइक कभी हम बारिश में भीग गए या फिर हम कहीं भी बाहर गए तो कुछ राइनो वायरस ने इफेक्ट कर दिया तो सर्दी होगी वगैरह वगैरह, जो मीन्स बेसिक चीज़ें. इन्फेक्शंस उसके अंदर आती है. फिर होती है लाइफस्टाइल के कारण, जैसे कि आजकल के डेली लाइफस्टाइल लोग एक्सरसाइज नहीं करते, राइट फूड नहीं खाते, जिसके कारण बीमार हो जाते हैं. लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह हो जाता है. हियर वी विल अंडरस्टैंड द टर्म हेल्थ. Health is frequently used by everybody nowadays. Health does not simply means absence of disease, which I have earlier told, or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental, and social well-being.
ठीक है। और ये हम हेल्दी बन सकते हैं, हमको अगर हेल्दी बनना है तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बैलेंस डाइट खाइए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। एज यू आर अवेयर दैट योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब होता है जब से समय के बारे में हमें याद भी नहीं कब से हम योगा करते आ रहे हैं, इंडिया में इंडियंस करते आ रहे हैं। बिकॉज इंडिया हैज़ अ ह्यूज एंड वेरी डाइवर्स नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। फिर हमें क्या बोलते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग अच्छा रखेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे वेस्ट का, तो उसके कारण मच्छर नहीं पनपेंगे। दैट मीन्स मॉस्किटोज विल नॉट गेट accumulated or breed, then it will lead to the less amount of the less number of the mosquitoes and ultimately the disease which are caused by the mosquitoes. पहले तो हमें समझना पड़ेगा दो तरह का डिजीज होता है। फर्स्ट इज कंटेजियस, सेकंड इज नॉन कंटेजियस। कंटेजियस को बोलते हैं कम्युनिकेबल, और नॉन कंटेजियस को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज वो से डिजीज होती है जो इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब नॉन कंटेजियस डिजीज जो होती है नॉन इन्फेक्शियस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ऐसी नहीं होती। जैसे कैंसर, यू कांट ट्रांसमिट कैंसर, लाइक if I have cancer, I can't transfer the cancer from my body to another person with the help of an vector. But इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होती है, जैसे कि हमें सर्दी जुकाम है, कोविड था, दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ सफर फ्रॉम दिस सम टाइम और अदर टाइम। और इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है, मतलब समरी में यही याद रखना अपने को। और इन्फेक्शियस डिजीज में जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है एड्स। एड्स आर फैटल। फैटल का मतलब है एड्स ऐसे बीमारी है जो इन्फेक्शियस डिजीज का सबसे पॉपुलर और सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। हम एड्स पढ़ेंगे आगे आएगा, सो रिलैक्स। सबसे बड़ी बात है हमें पढ़ना पड़ेगा पहले क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। जो बायोटेक वगैरह में वेक्टर आप पढ़े होंगे, मतलब जो इधर से उधर लेके जा रहा है वो वेक्टर है। पैथोजन क्या है, एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज पैथोजन। हियर इट इज लिखा होगा, रिटर्न होगा। सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और ज़्यादातर पैरासाइट क्या बोलते हैं पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो वगैरह, क्योंकि वो लेके इधर उधर जाते हैं। मीन्स मॉस्किटो वेक्टर है, उसके अंदर जैसे कि प्लाज्मोडियम चला जाता है, तो जिसके कारण वो होता है मलेरिया, ये पैथोजन। और क्या बोलते हैं पैथोजेंस को ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। पैथोजेंस अपने वाइटल ऑर्गेन्स के सहारे जी सकता है। लाइक दैट इफ़ एनी पैथोजन इज सर्वाइविंग द ह्यूमन गट, उसको ये आना चाहिए कि वो हमारे HCl से कैसे बचेगा, वो हमारे म्यूकस से कैसे बचेगा, या हमारे WBC उसको कैसे रिकॉग्नाइज ना करे। उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम नहीं है, उसको आँखों की कोई काम नहीं है, बिकॉज वो हमारे डाइजेस्टेड फूड जो हम डाइजेस्ट करके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स फ्लो होंगे तो वो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स तक करेगा, तो उसको डाइजेशन का जरूरत नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना एलिमिनेट करेगा और वो सिस्टम अपना एम्पावर करेगा, जिसके थ्रू वो गट में चिपक के रह सकता है और अनरिकॉग्नाइज वे में। Like for example, the pathogens that enters the gut must know various ways to surviving in the stomach at very low pH and resisting the various digestive enzymes, like which I already told, HCl and all. और जनरली सबसे पहला डिजीज अब हम पढ़ेंगे, 3-4 कैटेगरी डिजीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, देन आफ्टर पढ़ेंगे हम वायरल डिजीज, देन पढ़ेंगे प्रोटोजोअन डिजीज, और ऐसे करके हम पढ़ते जाएंगे। फिर राउंड वर्म डिजीज, नेमाटोहेल्मिंथेस वाली, फिर एसेक्हेल्मिंथेस, मतलब नेमाटोहेल्मिंथेस एसेक्हेल्मिंथेस एक ही बात हो गया, वगैरह वगैरह आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं हम साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया जो होता है टाइफाइड कॉज करता है। टाइफाइड क्या बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। टाइफाइड क्यों होता है, इट इज़ कॉज ड्यू टू दी फूड कंजम्पशन और द वाटर कंजम्पशन विच वी डू इन द स्ट्रीट्स, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन या हाइजीन मेंटेन नहीं रहती है। और टाइफाइड किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग्स। हियर यू कैन सी टाइफाइड का सिम्टम क्या होता है। सबसे पहली बात है उसमें हाई फीवर रहता है 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। उसमें वीकनेस होता है, स्टोमक पेन होता है, क्योंकि टाइफाइड क्या बोलते हैं अपने स्टोमक में मेनली इफेक्ट करता है। और क्या बोलते हैं वीकनेस होता है, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का या सी मेनी ऑफ यू डोंट नो दिस वर्ड एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख,
मतलब भूख कम नहीं लगने जाती। क्यों लगने लग जाती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम तक अनडिटेक्टेड रहेगा टाइफाइड तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन का मतलब होता है छेद। अगर ज़्यादा फिर वो डेथ डेथ भी हो सकता है पेशेंट का। ये सीवियर केसेस में होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लोगों को पता चल जाता है क्योंकि इतने सारे सिम्टम्स शो होते हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। बट फिर भी कोई नहीं गया तो बात अलग है। एपेटाइट का मतलब भूख, जैसे कि अब आपका इंटेस्टाइन ही डैमेज हो चुका है, आपको फीवर लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, तो इसके कारण लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। टाइफाइड फीवर को हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं? विडाल टेस्ट से। ये एक तरह का टेस्ट है जो भी किसी भी पैथोलैब में हो जाता है और जिस कारण हम चेक कर पाते हैं हमें टाइफाइड है कि नहीं है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग केस है एक टाइफाइड मैरी, मीन्स मैरी मेलॉन नाम की कुक थी। वो क्या बोलते हैं, सबको टाइफाइड कॉज करा देती। एक्चुअली सी वॉज एसिम्टोमेटिक। लाइक इन कोविड ऑल्सो वी हैव हर्ड मेनी पेशेंट्स वर एसिम्टोमेटिक, मीन्स उन्हें पता ही नहीं था हमें कोविड वायरस है, कोविड हो चुका है, कोरोना वायरस हमारे अंदर आ चुका है, और वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देते थे अनजाने में भी। ये मैरी मेलॉन एक कुक थी जो जगह जगह दूसरों के घर में खाना बनाती थी। उस कभी कभार उसके फिंगर्स में कट लग गया तो उसके कारण वगैरह और भी किसी रीजंस के कारण वो टाइफाइड मतलब स्प्रेड कर देती थी, जिसके कारण शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन। इट वॉज आस्क्ड इन नीट, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हर। And she was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared, which I've already told you. So let's study further. Pneumonia. निमोनिया दो चीज़ों से होता है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया निमोनिया का वर्ड को एक ग्रीक या लैटिन वर्ड होती है, इसको हम ब्रेक करना सीखेंगे। कोई भी चीज़ हमको लर्न नहीं करनी है, इसको ब्रेक करेंगे, समझेंगे। निमोनिया फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब लंग्स होगा। जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं नीट में कि राइनो वायरस जो है कॉमन कोल्ड कॉज करता है। यहाँ हम पढ़ेंगे मेनी वायरस कॉजेज डिजीज लाइक राइनो वायरस कॉज कॉमन कोल्ड। तो पूछा जाता है कि ये कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस कॉज करता है कहाँ पे इफेक्ट करता है? तो ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज में, बट नॉट द लंग्स। और ये न्यूमोनिया नाम ही है इसका, न्यूमोनिया। ये अपना इफेक्ट करता है एयर फिल्ड सैक्स या एल्वेलाई को। ठीक है, क्योंकि ये कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा को कॉज करते हैं। निमोनिया मतलब न्यूमो का वर्ड होता है एयर फिल्ड सैक्स या, तो वो लंग्स में डिजीज कॉज करता है निमोनिया। निमोनिया के कारण लंग्स इफेक्ट होते हैं। कॉमन राइनो वायरस के कारण कॉमन कोल्ड होता है जो कि रेस्पिरेटरी पैसेज और नोज का इफेक्ट करता है। ये क्या करता है ये अपना निमोनिया में हमको क्या बोलते हैं, फीवर चिल्स आते हैं, मतलब कपकपी वाली फीवर। कफ होता है मतलब खांसी होती है, हेडेक होता है, और कभी कभार जब सीवियर केस होता है लिप्स और फिंगर में टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। और ये कैसे इन्फेक्ट होता है? हेल्दी पर्सन में एक्वायर निमोनिया थ्रू द हेल्प बाई दी एरोसोल्स। जैसे हम सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री जब अपने पढ़ा होगा तो उसमें एरोसोल वगैरह वगैरह पढ़ा होगा, क्लास 9 से आता है वो सब बेसिक, या ड्रॉपलेट्स। और जो क्या बोलते हैं ये और भी तरह से इन्फेक्ट होता है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, शेयरिंग ऑफ कॉम, शेयरिंग ऑफ टॉवेल वगैरह। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना समझदारी है। और भी हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये ये अदर बैक्टीरियल डिजीज है। मीन्स दीज आर डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। फिर अब वायरस, मेनी वायरल डिजीज हम पढ़ेंगे अभी। जैसे राइनो वायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड। सब पूरी दुनिया में हर इंसान को कॉमन कोल्ड हुआ रहता है, सबको पता है। इसका बेसिक सिम्टम है 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 3 से 4 5 दिन तो मिनिमम रहता है कॉमन कोल्ड। तो वही लिखा है, इट लास्ट फॉर 3 to 7 days। देन आफ्टर ड्रॉपलेट्स, इसके ट्रांसफ़र कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स की हेल्प से होता है। और इसमें क्या, गला भारी हो जाता है, हेडेक होता है, म्यूकस रिलीज ज़्यादा होता है, मीन्स उसमें। और ये क्या बोलते हैं, इसके कारण हमें कफिंग और स्नीजिंग होता है, मीन्स सर्दी खांसी दोनों होता है। और ये अपना कहीं से भी मीन्स इन्फेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आता है इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर। जैसे कि डोर नॉब्स, अगर मुझे सर्दी है, मैंने अपना नोज़ वाइप किया, देन आफ्टर आई टच्ड द डोर नॉब वाइल ओपनिंग द डोर, देन नॉट इंटेंशनली बट कुछ वायरस वहाँ स्टिक हो गए होंगे। जो कोई अननोन पर्सन आएगा या जिसको नहीं पता है, जो भी अगला पर्सन आएगा जिसने डोर नॉब ओपन किया तो उसके हाथ में स्टिक हो जाएगा। फिर देन आफ्टर वेन एवर ही लाइक ही विल स्लाइड हिज हेयर और ही विल टच हिज आईज, ear, nothing, anything, then nose,
mouth, then that virus get inserted into the body of the another person and it will lead to the infection. बट ये इजीली ट्रीटेबल होती है, क्योंकि वायरस को हम कभी किल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी फ़िलहाल आज तक नहीं बनी है कि वायरस को हम हटा दें पूरी ज़िंदगी से। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि उसके इफ़ेक्ट कम कर सकें, लाइक बाय यूजिंग दी वार्म वाटर, बाय इनहेलिंग स्टीम एंड ऑल, विच यू ऑलरेडी प्रेटी मच नो। फिर अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज़, जैसे मलेरिया। मलेरिया भाई साहब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया सब मतलब गजब है। वी विल स्टडी दिस। इसको हम पढ़ सकते हैं पैराग्राफ से, लेकिन इसको हम डायग्राम से पढ़े ज़्यादा मज़ा आएगा और सही में मज़ा आएगा। ये देखिए, जस्ट इमेजिन हम यहाँ से पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दिस थिंग फ्रॉम हियर। यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मॉस्किटो आया जो इन्फेक्टेड है, वेक्टर भी है मॉस्किटो। तो देखो, पहली बात ये जान लो, प्लाज्मोडियम को दो वेक्टर, दो होस्ट चाहिए पहली बात अपने लाइफ में, और एक वेक्टर। दो होस्ट मतलब जिसके यहाँ वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा। तो एक होता है मॉस्किटो, एक होता है ह्यूमन। तो सबसे पहले वो मॉस्किटो में आया। अब वो कैसे आया वो मैं बताऊंगा आराम से, लेकिन वो आया, मान लो यहाँ पे मॉस्किटो इज कैरिंग दी प्लाज्मोडियम इन द स्पोरोजोइट स्टेज। वो आगे बताऊंगा। फिर वो स्पोरोजोइट स्टेज के स्पोर्स मतलब स्पोरोजाइट्स को अंदर इंजेक्ट करेगा मॉस्किटो हियर आफ्टर बाइटिंग अ हेल्दी पर्सन। और फिर वो पैरासाइट स्पोरोजाइट्स रीच द लीवर, वो लीवर तक पहुंचेंगी। फिर वो पैरासाइट जो है ह्यूमन के अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअली, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बस्ट करेगी लीवर सेल्स। देन आफ्टर वो अपने मल्टीप्लाइड स्टेज में बहुत सारे हो जाएंगे, तो फिर उनमें से कुछ जाएंगी आरबीसी के पास। आरबीसी बस्ट करेंगे जिसके कारण फीवर चिल कफ मतलब फीवर चिल्स आएंगे, फीवर होगा आपको। और ये साइक्लिकल फीवर होता है, मतलब हर 3 से 4-5 दिन में होता है, क्योंकि वो 3-4 दिन का इनको टाइम चाहिए रहता है अपना ग्रोथ करने के लिए। फिर पैरासाइट क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली आरबीसीज, बस्टिंग द आरबीसीज एंड causing the cycles of fever and other symptoms. Release parasite infect new red blood cells also, which I already told. यहाँ पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने गैमेटोसाइट्स बनाएगा, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। जब नया मच्छर आएगा जो इफेक्टेड नहीं है, अनदर मॉस्किटो विच इज नॉट अफेक्टेड, और विच इज अफेक्टेड बोल रहा हूँ, मीन्स विच इज नॉट कैरिंग दी स्पोरोजॉइड्स, when that mosquito will suck the blood, then after the female mosquito take up the gametocyte with the blood meal, which is written here also, you can see. फिर वो जाएगा गैमेटोसाइट्स, क्या बोलते हैं, फीमेल मॉस्किटो गट में जाएगा। वहाँ पे वो गैमेटोसाइट्स फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद वो स्पोरोजॉइट स्टेज बनेंगे, और स्पोरोजॉइट स्टेज जाके वो स्पोरोजाइट्स उसके माउथ में जाएंगे, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में, क्योंकि वो क्या गट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। वी हैव टू रिमेंबर दैट फर्टिलाइजेशन एंड गट, these two words, fertilization and development takes place in the mosquito gut. Then after that sporozoids infect, which is termed as infective stage, which I've already told that sporozoids inject होते हैं sporozoid stage में। फिर उसके बाद वो मॉस्किटो इफेक्टेड हो जाएगा, और वो मीन्स मॉस्किटो उसका कैरियर बन जाएगा, वो लेके उसको जाएगा। हाँ, मेरे से कुछ लोगों ने कभी पूछा था कि मॉस्किटो को मलेरिया क्यों नहीं होता, क्योंकि मॉस्किटो को क्या चाहिए, पहली बात है लीवर चाहिए उसको बर्स्ट करने के लिए, आरबीसी चाहिए। मॉस्किटो के पास ना लीवर है, लीवर अगर होगा भी तो आरबीसी तो नहीं है भाई, फॉर श्योर। अब यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम विच आई रिकॉर्ड ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट ह्यूमंस एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मलेरिया का होस्ट कौन होते हैं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, लाइक डेंगू और चिकनगुनिया के एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो होते हैं। ठीक है, ये भी है कोर्स में ऐड हुआ है, फिलहाल थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ज़्यादा तो है नहीं। प्लाज्मोडियम 3 तरह का होता है, पी वाइवैक्स, पी मैलेरिया एंड पी फैल्सीफेरम। और पी फैल्सीफेरम जो है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एंड फैटल है। और जो फीमेल इन्फेक्टेड है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो स्टेज मतलब इन्फेक्शियस फॉर्म में स्पोरोजॉइड्स क्या बोलते हैं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट करती है। और फिर जब अब द रप्चर ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी रप्चर होता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, जो जो मेन रीजन है जिसके कारण चिल्स एंड हाई फीवर ऑकरिंग एवरी 3 to 4 days, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, देन हियर वी विल स्टडी अबाउट द एमीबियासिस। एमीबियासिस
इज अ डिजीज विच इज कॉज बाय एंटामेबा हिस्टोलिका विच इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट। ठीक है, इसको एमबीबीएस को एमएबी डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये हाउस फ्लाइज इसके कैरियर होती है, विच यू हैव टू रिमेंबर। हाउस फ्लाइज सर्व एज द मैकेनिकल कैरियर्स and serve to transmit parasite from feces to infected person to through food and food product, thereby contaminating them and drinking water and contaminated by the fecal matter as the main source of the infection। जो मैंने पहले ही बोला, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, बाहर में स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हाउस फ्लाइज वहाँ पे मतलब मक्खियाँ उड़ती रहती है। आप कभी भी देखोगे घर के अंदर मक्खियाँ नहीं दिखती है, बाहर दिखती है। बाहर इसलिए दिखती है क्योंकि वहाँ प्रॉपर सैनिटेशन हाइजीन मेंटेन नहीं है। और ये एमबीबीएस ऐसे होता भी नहीं है, ऑफिस के ऊपर से लेके आती है, फिर खाने के बाद बैठ जाती है, जिसके कारण इन्फेक्टेड हो जाता है फूड। फिर वही फूड को हम खाते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। और इसके सिम्टम ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन्स होता है, क्रैम्प्स होता है, स्टूल्स में एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लोगों को होता रहता है, समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। एस्कैरेसिस इज द कॉमन राउंड वर्म डिजीज। मीन्स एस्कैरेसिस एक कॉमन राउंड वर्म है। वुशेरिया द फ्लायर वर्म, वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुशेरिया मेलाई होता है। पहली बात, ये दो चीज़ हम जानते हैं। देखो यहाँ इसके ऐसे पढ़ना है, जैसे यहाँ वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुशेरिया मेलाई द फ्लायर वर्म वी स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन द ऑर्गन्स एंड लीव फॉर मेनी ईयर्स। ये कॉज करता है एलिफेंटियासिस विच यू सी हियर। इतना बड़ा नहीं हो जाता है पैर, थोड़ा ज़्यादा बना दिया है डायग्राम में, ठीक है। चलो अपने क्या, वी हैव टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी सिंपल। ये कभी भी ऐसा सुने होंगे हाथी पाँव, कभी सुने भाई हाथी कान हो गया, हाथी हाथ हो गया, हाथी नाक हो गया, हाथी मुंह हो गया? ऐसा क्यों नहीं होता है? कोई तो रीज़न होगा। इसका रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पढ़ेंगे ये अपना इम्यूनिटी, हियर देखो यहाँ पे वो है लिम्फॉइड नोड्स विच बुक हैवंट मेंशन प्रॉपरली। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, प्रॉपर एक चेक पॉइंट जैसा काम करते हैं, जहाँ पे चेक होता है कि मीन्स कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वगैरह तो नहीं आ गया, क्योंकि लिम्फ क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव इन नेचर भी होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th के ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो यहाँ का जो लिम्फ नोड है ये बड़ा होता है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पैर यहाँ तक होता है। अगर यहाँ पे भी है तो वो जाके छुप जाता है, फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। जब ग्रोथ हो जाती है तो यहाँ आके लॉक हो जाता है, फंस जाता है। फिर इसी कारण से यहाँ पे अपना क्रिएट हो जाता है हाथी पाँव। ये मेडिकल कॉलेज में अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, बता दिया मैंने। क्योंकि हमें समझ के पढ़ना है, हमें लर्न नहीं करना है सब चीज़। अगर मैं लर्न ही करा दूँ तो मेरे आने का क्या फ़ायदा यूट्यूब में। एस्कैरेसिस इज़ अ कॉमन राउंड वॉर्म। ये भी एक राउंड वॉर्म है, वुचेरिया भी एक राउंड वॉर्म, फ्लायर वॉर्म, ये सब राउंड वॉर्म्स का एग्जांपल है। राउंड वॉर्म मतलब ऐसे हेलमिंथेस या नेमाटोड्स जिसको बोलते हैं। एस्कैरेसिस जो है, एस्कैरियासिस कॉज करता है। इसके सिम्टम्स काफ़ी सिंपल है, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है। इसके एक्स जो है, जैसे एस्कैरियासिस जिसको होता है ना, कभी उसका ऑपरेशन अगर देखोगे तो उसके इंटेस्टाइन के अंदर से बहुत सारे कीड़े जैसे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाकर लॉक हो जाते, फंस जाते हैं, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। और ये भी वैसे ही होता है अगर आप एस्कैरियासिस पेशेंट अगर कहीं भी फिकल मटेरियल ऐसे भी कहीं भी डिस्पोज प्रॉपर जगह नहीं डिस्पोज करके, कहीं भी अगर उसने फिसिस पास आउट कर दिया, तो वो सॉइल को कंटामिनेट कर देगा, वाटर को कर देगा, प्लांट को कर देगा, और जिसके कारण एक हेल्दी पर्सन को भी बाद में एस्कैरियासिस हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर आपको कोई बीमारी हो या ना हो, वॉशरूम यूज़ करिए, प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट, वहाँ भी हाइजीन मेंटेन करना मस्ट है। विच आई ऑलरेडी टोल्ड, जैसे एलिफेंटियासिस जिसका दूसरा नाम फिलेरियासिस, और जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मेलिटीज एंड पैथोजन ट्रांसमिटिंग टू हेल्दी पर्सन में एक्वायर मीन्स पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फिर आता है हमारा मिनी फंगाई, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जैसे आपने टीवी में ऐड देखा हो, दाग हाथ खुजली में ये लगाइए वो लगाइए वगैरह वगैरह। तो फंगल डिजीज को तीन जनरा मिलकर कॉज करते हैं, तीन फंगल, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइगोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म डिजीज। मीन्स रिंग वॉर्म जो एक डिजीज है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन को, यहाँ पे
पैच पैच जैसा दिख रहा है, इसको ये डिजीज़ हो चुका है रिंगवर्म। यही कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहली बात है ये फिंगर्स के बिटवीन होता है, टोस के बिटवीन होता है, ईयर्स के पीछे होता है, अंडर आर्म्स में होता है, ग्रोइंग रीजन में होता है। ग्रोइंग रीजन वो रीजन है जहाँ पे क्या बोलते हैं, दो लेग्स आके अटैच होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, उसी के बाहर के रीजन को बोलते हैं ग्रोइंग रीजन। और ये क्यों होता है? फंगल को सबसे पहले चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, जो हम पढ़े होंगे क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 में पढ़े, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन फंगल ग्रोथ होता है। तो फंगल ग्रोथ करने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन उसको यही मिलती है, जैसे फिंगर्स के पीछे मिलती है, गले के पीछे मिलती है एंड ग्रोइंग रीजन में मिलती है। तो उसके कारण वहाँ पे फंगल ग्रोथ अच्छे से होता है। इसको हम रोक कैसे सकते हैं? सबसे पहली बात है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड प्यूबिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई ऑलरेडी टोल्ड। और सबसे और एक और चीज़ें हमको चाहिए कि हम कुछ भी खाएं तो देख के खाएं, इधर उधर सैनिटेशन पूरा मेंटेन है कि नहीं। और जैसे जो ये सब एयर बोर्न डिजीज है जैसे न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये सब को इसको बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसका बचना है तो मास्क पहनिए, मास्क पहन के चलिए। और वक्त वक्त मीन्स टाइम टू टाइम सैनिटाइज करिए हैंड्स को, विच वी वर डूइंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2022 टू 2022 में 2020 से 2022 तक। और जो मॉस्किटो डिजीज़ है तो मॉस्किटो को ग्रोथ हमको रोक देना पड़ेगा। मॉस्किटो ग्रोथ रोकना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, कूलर साफ रखिए वगैरह वगैरह, यही सब यहाँ पे लिखा है। इसके ब्रीडिंग प्लेसेस को हैम्पर कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई छोटा सा तालाब है जहाँ पे मच्छर बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम गैम्बुशिया फिश रिलीज कर सकते हैं। गैम्बुशिया फिश जो है मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करके, like here it is written, like Gambusha fish in the ponds that feeds on mosquito larvae, spraying of insecticides in ditches and drainage area and swamps also etc. ये सब करके फिर मैंने बताया वेक्टर ब्रोन एडीज मॉस्किटो जो है क्या बोलते हैं डेंगू एंड चिकनगुनिया क्रॉस करती है। इट इज़ नॉट डेंगू, इट इज़ डेंगी। फर्स्ट टू लर्न दिस। फिर बैक्टीरियल डिजीज वगैरह वगैरह मैंने बताया था। फिर जैसे विद हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, हमने अपने कंट्री से बहुत सारी बीमारियों को हटा दिया है, जैसे कि जैसे विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमने क्या स्मॉल पॉक्स को टोटली एरेडिकेट कर दिया, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया स्मॉल पॉक्स को। फिर वैसे ही हमने पोलियो का लगभग मीन्स इंडिया में तो बचा नहीं है, कहीं फॉरेन में अफ्रीका वगैरह में हो पेशेंट इससे पता लगे पोलियो ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करके। देन आफ्टर हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी कुछ किया है, विच वी विल लर्न। आएगा आगे आराम से आएगा, पढ़ लेंगे, 12th का सिलेबस होता ही कितना है। इम्यूनिटी सबसे बड़ी बात है। इम्यूनिटी वर्ड समझने से पहले हमें पहले समझना चाहिए इम्यूनिटी मीन्स हो क्या रहा है। मैं बाहर रोज़ जाता हूँ, आप बाहर रोज़ जा रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी छू रहे, कहीं भी उठ रहे, कहीं भी बैठ रहे, कहीं भी खा रहे, कहीं भी पी रहे, कुछ भी कर रहे हैं, हम रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, फिर भी हम क्यों नहीं रोज़ बीमार पड़ जाते हैं? ड्यू टू द आवर इम्यून सिस्टम और इस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, the overall ability of the host fighting the disease causing organisms conferred to the immune system is called immunity. Immunity दो तरह का होता है, एक होता है innate immunity और एक होता है acquired immunity. Innate और acquired, innate word से समझ में आ रहा है। Here the innate immunity, this word tells you, innate means हम जो inherit करके आ रहे हैं from parents। मतलब ये एक सबसे बड़ी बात क्या है कि innate immunity नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी थी। दो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, पहली होती है स्पेसिफिक होती है, दूसरी होती है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब डिजीज के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दिख गया, उस वो WBC उसके लिए मीन्स प्रॉपर मीन्स वो इम्यून सिस्टम का पार्ट उसके लिए प्रॉपर हाइपर एक्टिव स्टेज में है कि वो दिख गया मुझे तो मैं उसको मार दूंगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और दिख रहा है तो मैं उसके लिए उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। वो होता है अपना दूसरे तरह का इम्यूनिटी। ये है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। हियर वी विल लर्न इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सबसे बड़ी बात है कि ये सबके लिए जनरलाइजेशन है। जैसे फिजिकल बैरियर, इसके पहले तो चार बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकैन बैरियर्स। फिजिकल बैरियर जैसे कि स्किन होता है, हमारा स्किन कितना बड़ा बैरियर है यह हम सब जानते हैं कि स्किन में कट लग जाती है तो कोई तुरंत इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन जब तक स्किन प्रॉपर है बिना किसी डैमेज के, तब तक हमें कई सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। फिर म्यूकस कोटिंग यहाँ रेस्पिरेटरी पैसेज से वगैरह वगैरह ऐसे होते हुए पूरा GI ट्रैक्ट तक, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट तक भी होता है वो। तो
तो ये हमें फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर जैसे कि सलाइवा इन माउथ, फिर हमारे टीयर्स में जो होता है लैक्राइमल ग्लैंड होता है, जो हमने पढ़ा होगा ऑलरेडी। फिर एसिड जो होता है स्टोमक में, ये आता है फिजियोलॉजिकल। फिर सेलुलर बैरियर में आता है WBC और PMNL। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स एंड PMNL मीन्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स तो हम जानते ही ऑलरेडी, एज वी हैव पास 11 क्लास, यू नो इट वेरी वेल। चौथा होता है साइटोकाइन बैरियर्स। ये इंटरेस्टिंग है, इसको हम उतना अच्छे से पहले से नहीं जान रहे होते, लेकिन चलो अब जान रहे हैं। साइटोकाइन बैरियर्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन। मतलब देखो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, ह्यूमंस जैसे नहीं होते कि हम तो डूबे तो तुम्हें भी ले डूबे, नहीं। इफ आई एम गेटिंग डेड देन आई विल मेक श्योर दैट द सराउंडिंग सेल्स वोंट गेट अफेक्टेड बाई द सेम ऑर्गेनिज्म और द सेम वायरस। वो कैसे होता है, जैसे कि मुझे मान लो मैं एक सेल हूँ, मुझे हो गया वायरस, मीन्स मेरे अंदर वायरस आ गया, इन्फेक्ट कर गया मुझे। अब मेरे को पता है कि मैं मरने वाला, तो मैं मरते मरते एक इंटरफेरॉन्स नाम का प्रोटीन रिलीज करूँगा, जो मेरे अगल बगल वाले सेल्स को बचा तो नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें ये बता जरूर देगा कि भाई मैं इन्फेक्टेड हो गया था वायरस से, तो अब कुछ आप प्रोटेक्शन के लिए अपना करिए। अब दूसरी तरीके की आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है। इसी के अंदर हम सब पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड ऑल, मतलब सब इसी के अंदर आता है। उसको समझाऊंगा आराम से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, इसके दो रिस्पॉन्स होते हैं। पहली बात है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसका हम ग्राफ यहाँ बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड है। वो पेन टाइप आ रहा है, ऑर्डर किया हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और नया नया सेटअप किया हम क्लास का, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट है, विच वी नो। देखो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, वेरस सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स की क्रेस्ट ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जो जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया मान लो पहली बार हमारे अंदर आया, हमें उसके बारे में नहीं पता था, तो हमें इन्फेक्ट करके चला गया। लेकिन जब वो दोबारा आया तब तक हमें उसके बारे में पता था कि भाई ये आता है तो हमें बीमार करके चला जाता है। इसलिए हमारे पास ऑलरेडी उसके खिलाफ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम उसको एनकाउंटर करेंगे। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, जैसे कि वी विल अंडरस्टैंड दैट हियर इट इज रिटन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक विच आई हैव टोल्ड। ये मेमोरी सेल्स पे डिपेंड करती है। 5 तरह का एंटीबॉडी होती है, आई जी जी, पहले IgG, AMED, ये 5 तरह की होती है। जैसे कि IgGE, तो जो ई वाला एंटीबॉडी है क्या बोलते हैं, वो हमारा उसके लिए है, एलर्जी के लिए। IgG जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड इट कैन इवन क्रॉस प्लासेंटा। एंड वी हैव read already in reproduction chapter that the first breast milk which is secreted by the lactating woman mother contains colostrum which have the IgA antibody which is very specific and which is very much highly required by the newborn baby. तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे सब्सिक्वेंट एनकाउंटर का नतीजा होता है, मतलब दोबारा वो आता है तो। और ये हाई इंटेंसिफाइड होता है सेकेंडरी। और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स, एनामिस्टिक का मतलब होता है मेमोरी से रिलेटेड। तो कभी कभार एनसीईआरटी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा इंग्लिश लिख देता है, हाईलाइटेड भी। ये कार्टून है ना, इसमें मत सोचना कैसे होता है भैया, ये कार्टून है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दिस ओनली एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। यहाँ पे होता है H2L2, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट हमारे प्रोड्यूस होती है। हमारे पास 2 तरह का क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो हम पढ़ के आ रहे हैं 11th क्लास में। यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है H2L2, 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। यहाँ पे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसा करके आप काउंट कर सकते हो। हियर इट इज रिटन ऑल्सो 2 small and 2 longer and heavy chain, hence antibodies represented as H2 and L2. Different types of antibodies are produced in our body, which I have told you.
IgA, IgM, IgE and IgG are some of them. A cartoon of antibody is present here. ये देखो ये एंटीबॉडी है, एंटीजन आएगा, इससे बाइंड करेगा, फिर हम इस पे मीन्स फिर एंटीबॉडी इस पे एक्शन लेगा. यहाँ पे हैवी चेन है, यहाँ पे लाइट चेन है, विच यू कैन सी हियर, इट इज लेबल्ड. As you can properly see here, light chain is labeled and here heavy chain is labeled. Then after, दो तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होता है. पहला होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, फिर आता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMI. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट करती है उससे डील करता है. सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट होता है. बी लिम्फोसाइट का ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के साथ लिंक होता है, टी लिम्फोसाइट का CMI के साथ लिंक होता है. वेरी ऑफन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन, तो ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं. ट्रांसप्लांटेशन जैसे किडनी कभी कभार खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट करते हैं. तो ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है. ग्राफ्ट मतलब कि जो हम ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट और इवन द पेशेंट हैज़ टू टेक मीन्स ये ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट, ठीक है. तो यही है जिसके कारण ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट रिजेक्ट होता है. कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दिया लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाया, उसका डेथ हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी या उसका इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया. वो पहले हो जाता थे. आज के डेट में हम कई सारे पेशेंट्स को बचा पाते हैं. क्यों, विद द हेल्प ऑफ द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो हमारी बॉडी को ग्राफ्ट रिजेक्शन करने नहीं देता है. और CMI जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. देन हियर सबसे बड़ी बात है कैसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं. जैसे जो हमने क्लास 11th के एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ा है, साइक्लोस्पोरिन ए, विच यू रिमेंबर्ड, आई थिंक सो. तो बेटा वही है जो है अपना इम्यूनोसप्रेसेंट. एक एग्जांपल है उसका. मीन्स बहुत से कई सारे मेडिकेशंस होते हैं विच यू ऑल विल लर्न नेक्स्ट ईयर आफ्टर पासिंग नीट 2026. दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है और टेक्स टाइम्स, मीन्स वो थोड़ा टाइम लेता है अपना काम करने में. और पैसिव इम्यूनिटी वो होता है जो तुरंत काम करता है. कैसे, पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि जो हमें मिल रहा है, जैसे ये तो ऐसे पढ़ोगे मज़ा नहीं है. चलो मैं बताता हूँ. एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. पैसिव इम्यूनिटी दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. जैसे कि पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल, सबसे पहले पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड एक्टिव इम्यूनिटी विच विल लीड टू दी स्मूथनेस. पैसिव इम्यूनिटी दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि मदर्स मिल्क, जैसे कोलेस्ट्रॉम विच आई ऑलरेडी टोल्ड कंटेन्स IgA एंटीबॉडीज, ये फीटस के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये कोलेस्ट्रॉम जो है जिसमें IgA एंटीबॉडी हो रहा है, ये अपना पैसिव इम्यूनिटी का नेचुरल वर्जन है. इसे एक आर्टिफिशियल वो होता है जैसे कि किसी को कभी कभार स्नेक बाइट कर लिया तो स्नेक वेनम जो उसको हम दे रहे हैं. यहाँ पे टाइम नहीं है कि हम एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन बॉडी में कराए बनाए फिर उसको किल करें फिर हम बचे. इतना नहीं कर सकते, तब तक हो चुका होगा काम तमाम. इसीलिए हम डायरेक्ट बाहर से इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज. तो वो होती है स्नेक वेनम के अगेंस्ट. स्नेक वेनम मतलब जहर, सांप का जहर के अगेंस्ट वो घोड़े में हम इंजेक्ट करते हैं. तो घोड़े को सांप से कटाते हैं या स्नेक वेनम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं. तो वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसको हम इंजेक्शन में स्टोर करते हैं, फिर बायोटेक हेल्प से उसको बढ़ाते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचते हैं. तो वो पैसिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल मोड हो गया. अब हम पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. बॉडी में जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल पार्ट में हम ये आते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल पहले पढ़ना पड़ेगा. जैसे कि वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन में एक वीकेंड पैथोजन में एक कमज़ोर पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी बना रही है और वो उसको किल कर देगा. तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का फर्स्ट डोज हो, मतलब फर्स्ट आर्टिफिशियल टाइप हो गया. और एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल कैसे होगा, जब वही इन्फेक्शियस एजेंट दोबारा हमारे बॉडी में आएगा तब हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स विच वी हैव रेड हियर विच इज अंडर द acquired immunity which will lead to the killing of that bacteria or the pathogen and ultimately making us safe from the disease causing organism. तो वो हो गया हमारा एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल टाइप.
वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में फ़र्क होता है, लेकिन वो हमारे नीट के सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। द इम्यूनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल वही है, मेमोरी से रिलेटेड या और इम्यून सिस्टम के। इन वैक्सीनेशन वी इंजेक्ट अ प्रिपेयर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन, इनएक्टिव वीकेंड पैथोजन, जो हमारे बॉडी के लिए फैटल नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉडी को पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए ख़राब है, और ये हमारा आता है। और जैसे इसके अंदर हम वो भी पढ़ेंगे, इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शंस विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड is given to the patient. Certain perform antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. फ्री कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सब पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया में, जैसे कि एग्जांपल हेपेटाइटिस बी के लिए हम वैक्सीन जो बनाए यीस्ट से बनाए, ये बायोटेक के अंदर आता है, आगे आएगा हम पढ़ेंगे। एलर्जी क्या होता है, जैसे कि मुझे एलर्जी डस्ट से, मेरे लंग्स में डस्ट से जो पाए जाते हैं वो हाइपर सेंसिटिव है धूल के लिए, डस्ट के लिए या फिर गंदगी के लिए। तो वहाँ पे मैं जैसे ही वहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ जहाँ पे धूल डस्ट ये सब हो या फिर स्मोक हो, तो मैं वहाँ छींकने खांसने लग जाता हूँ। क्यों? बिकॉज एलर्जी क्या करता है, द एक्सरगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, द एक्सरगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। ये कुछ भी हो सकता है, किसी को डस्ट से होता है, किसी को फ्लावर के पॉलन से होता है, किसी को पिस्टिल से होता है, किसी को लेदर से होता है, किसी को किसी भी चीज़ से होता है। तो इसमें IgE जो मैंने बताया था, ई फॉर इसलिए एलर्जी, यहाँ पे IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि सुना होगा आप सबने एंटी हिस्टामिन जो है एलर्जी में ये सब में रिलीज़ होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले सकते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन इंजेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि जो एस्मा पेशेंट्स होते हैं उनके एस्थमा में क्या भरा रहता है, मीन्स उनके उस पंप में क्या भरा रहता है, उसमें रहता है वैसो डायलेटर, जो उनके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसके कारण वो अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो ये सब एलर्जी वगैरह के अंदर ही आता है। फिर आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मेमोरी बेस्ड सेल्स, जैसे हमें आज तक नहीं पता चल पाया कि ऑटो इम्यूनिटी का मेन रीज़न क्या है, कि कभी कभी हमें लगता है जेनेटिक रीज़न है और कभी कभी हमें अननोन रीजन्स लगता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसा रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। पहली बात है ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी इम्यूनिटी जैसा हम समझ गए डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी इम्यूनिटी होती है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब जैसे कभी कभार हमारे बॉडी के सेल्स खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और इसका एग्जांपल हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी देखेंगे, आएगा। उसमें लिखा है कि सोरियासिस ऑल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच कांट बी ट्रीटेड, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न क्या है अभी तक हमें पता नहीं चल पाया, साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं, शायद जल्दी पता चल जाए। और इम्यून सिस्टम अब हमारा ख़त्म ही होने को आया। इम्यून सिस्टम में पहले तो दो तरह के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी इम्यून लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आता है बोन मैरो एंड थाइमस, वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे थाइमस जो है ये मेन ग्लैंड है। एज के साथ साथ थाइमस की साइज डिक्रीज होने लग जाती है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसीलिए कोविड में 60 साल के ऊपर लोगों को बोला गया था घर में रहिए, क्योंकि उनका थाइमस कम हो गया रहता है और बचपन में सबसे ज़्यादा रहता है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स, पेयर पैच, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। ये क्या बोलते हैं, आपको वो देता है इंटरेक्शन हेल्प करता है लिम्फ उसके साथ, एंटीजन के साथ। और बोन मैरो में वो सब हमारा वो सब होता है लिम्फॉइड। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन विच आई ऑलरेडी टोल्ड हियर। द बोन मैरो एंड द थाइमस आर द प्राइमरी एंड द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन लोकेटेड नियर द, और ये थाइमस, द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन which I've shown here. You can see thymus beneath the heart and near the breastbone. और ये क्या बोलते हैं इसका मीन्स ब्रेस्ट बोन का अंदर होता है, मीन्स उसके पीछे। और ये द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ बट कीप reducing its size by the age, and by the puberty is attained it reduces to very small size. और ये both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of the T lymphocyte, जो हम अभी पढ़े। और स्प्लीन,
एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। लेकिन स्प्लीन का काम सिर्फ आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है या फिर वहाँ पे रखना नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। और इसमें पढ़ने जैसा यही है कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है ये अपने को डिजीज से बचाने के लिए होते हैं। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द ऑर्गन ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन और सबसे बड़ा क्या है लिम्फॉइड टिश्यू, वो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू MALT। ये अपना रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का म्यूकोसा लेयर में फॉर्म होता है। ये इसकी लाइनिंग क्रिएट करती है। और ये जो हमने वहाँ पे पढ़ के आया था, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा था फिजिकल बैरियर में कि म्यूकस कोटिंग इज द एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनोजेनाइटल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये 50% से ज़्यादा लिम्फॉइड टिश्यू होल्ड करता है और ये हमारा मेन लिम्फॉइड टिश्यू है। तो गाइस इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू फाइंड दिस चैनल हेल्पफुल देन काइंडली सब्सक्राइब दिस, और ऐसे ही रेलिवेंट कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।